अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में मुर्दा जानवरों का गोश्त भी फ़रोख्त होता है। ये मुर्दा गोश्त फ़रोख्त करने वाला गिरोह कौन है, पुलिस ने इन्हें कैसे गिरफ्तार किया, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम। शहर लाहौर में मुर्दा गोश्त फ़रोख्त होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि मुर्दा गोश्त जो है वो फ़रोख्त होता है लाहौर शहर में। इसी तरह का एक मामला है जिसमें एक शख्स को शेराकोट पुलिस की हिरासत में है, गिरफ़्तार किया है और ये मुर्दा जानवर का गोश्त जो है शहर में दूसरी जगह पे मुंतकिल कर रहा था। इनसे पूछते हैं कि ये मामला है क्या। क्या नाम है जी आपका? सैफुल्ला। सैफुल्ला जी। की काम करते हो? ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ? ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਗੜ ਲੈਣ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੱਦੇ, ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆਦਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਉਧਰ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੋ? ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ। ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਹੈ ਸੀ? ਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਦੋਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂ। ਸਵੇਰ। ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਟੌਂਟੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਖਾਲੀ ਸੀ? ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਗੈਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਤੇ। ਮੈਂ 1000-1500 ਦੇਗਾ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ? ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਡੰਗਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ? ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜੀ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2000 ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਪਵਾਤਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦਿਆਂ ਸਰ। 1500 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਲੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਸਿਰਗੜ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੋ? ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੋ। ਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੁਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ? ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਫਾਲਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੇਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਲ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਣਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
कोई अरसा नहीं है हुनी की ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ गड्डी किराए दी है, गड्डी के मालिक अच्छा। होर ने। ਮਾਲਕ ਹੋਰ हाँ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ हाँ जी तनख्वाह ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ मेरी तनख्वाह है 20,000 रुपये तनख्वाह। ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫੌਰਨ सोच के ਦੱਸ दसी दा कि उनको फेरा ही नहीं निकलता पिया ते तनख्वाह देने वाला मसला भी ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ 20,000 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਤ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। ਛੋਟਾ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ record ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੜੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਵਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਨੰਬਰ? ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਫੇਰਾ ਦੇ। अच्छा ठीक हो गया। जावेद साहब हैं जी, सब इंस्पेक्टर हैं शेराकोट थाने के। इनसे पूछते हैं कि कैसे कार्रवाई जो है वो अमल में लाएगी। जावेद साहब बताएं, ये जो ड्राइवर साहब हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी में मुर्दा जानवर को लोड किया हुआ था, ये तो कह रहे हैं कि मेरा जानवर ही नहीं है और वो व्यापारी जो है वो भाग गया। आपने किस तरह से कार्रवाई की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग मामूल के मुताबिक ये चौक बाबू साहब पर गश्त पर थे, तो एक मशकूक मजदे को चौक कर रोक कर चेक किया गया। तो जब हमने उसको रोका तो उसने भगाने की कोशिश की। ठीक है। तो हमने उसको आगे जाकर रोक लिया, तो देखा कि उसके अंदर एक मरी हुई भैंस थी, एक गाय थी। ठीक है। तो जब मैंने पूछा ये क्या चीज़ है, कहता जी हम इसको स्लाटर हाउस लेके जा रहे हैं गोश्त बनाने के लिए। अच्छा। तो इतना बड़ा जुल्म, ठीक है। तो हमने फौरी कार्रवाई करते हुए इसको थाने लेके आए हैं और हमने मुतलका फूड अथॉरिटी को बुला लिया है। ठीक है। और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि जी वो जानवर जो है वो बीमार था और जिंदा था, तो जब आपने इनको पकड़ा तो उस वक्त जानवर मर चुका हुआ था, मरा हुआ था? ये बिल्कुल मरा हुआ है, इंतहाई ये बिल्कुल ख़त्म हुआ है। अच्छा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये पहले से मरा हुआ लेके आए हैं। ठीक है। और स्पेशल इसके लिए लेके आए हैं कि इसको गोश्त का बना इसको सप्लाई करेंगे लाहौर वासियों को। अच्छा जी। लो जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਗੱਡੀ ਜੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ जी? हाँ जी जावेद साहब, क्या कहते हैं आप इस पे? सर इस पर यह कहता हूँ ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल मुर्दा गाय थी, ये पीछे से मरी हुई आई है। बिल्कुल ये ठीक है। स्पेशल इसको स्लाटर हाउस के लिए लेके आए हैं, ये इन्होंने गोश्त बनाना था और लाहौर के बासियों को खिलाना था। और बात आपकी ये भी ठीक है क्योंकि ये स्लाटर हाउस ही गाड़ी चलाते हैं और ये उनके साथ ताल्लुक भी है क्योंकि ये स्लाटर हाउस और जहाँ पे जानवर का ही काम ये करते हैं। ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनका काम ही ये है कि दूर दराज से ये मुर्दे गाय जो जानवर होते हैं ना, इनको स्लाटर हाउस लेके आते हैं। अच्छा। और लाहौरियों को ये गोश्त खिलाते हैं। ठीक है। ये था जी मौक़िफ़ जो मुलजिम गिरफ्तार है उसका, और पुलिस का भी मौक़िफ़ आपने सुना। जो शहर लाहौर के रहने वाले हैं या लाहौर से बाहर आकर यहाँ पर खाना खाने के शौकीन लोग हैं, उनको इस तरह का जानवर जो है उसका मुर्दा गोश्त जो है वो भी खिलाया जाता है। और ये अब इनकार करते हैं, कहते हैं बीमार जानवर था, उसको मैं यहाँ पे लाहौर लेके आ रहा था। लेकिन जो गुफ्तगू जो बात इनसे हुई है उससे यही ज़ाहिर होता है कि ये प्रोफेशनल काम करने वाले हैं और इसी तरह
लाहौर शहर में मुर्दा जानवर दूसरे शहरों से लाकर उसका मुर्दा जानवर का गोश्त हम जैसे लोगों को ये खिलाते हैं। ये वो मुर्दा जानवर है जिसको शरकपुर शरीफ से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। गाय है और इसको ज़िबा किया गया है। शबीर साहब, आप इसको ज़रा क्लोज़ करके दिखाएं कि इसको छुरी फेरी गई है और ये इसकी जो हालत है वो वाकई ऐसे लग रही है कि ये बीमार जानवर था और बीमार जानवर होने की वजह से इसको जो है ये मर चुका था और मरने के बाद इसको छुरी फेरी गई है और अब इसको यहाँ पर जो है लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। ये वो गाड़ी है जिसमें इसको लाहौर में मुंतकिल किया जा रहा था और आप देख सकते हैं कि ये गाय, इसकी सेहत भी बता रही है कि ये बीमार गाय थी, मरने के बाद इसको छुरी फेरी गई। अदनान रशीद साहब हैं जी, एडिशनल डायरेक्टर फूड अथॉरिटी लाहौर हैं। इनसे बात करते हैं कि जो लाहौर शहर में मुर्दा जानवरों का गोश्त फ़रोख्त होता है उस पर इनकी अथॉरिटी क्या कार्रवाई करती है, जिस तरह से ये जानवर एक पकड़ा गया है और मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया। अदनान साहब बहुत शुक्रिया। अदनान साहब ये बताइएगा कि फ़ूड अथॉरिटी लाहौर शहर बहुत बड़ा है, किस तरह से कार्रवाइयाँ कर पाती है और सबसे पहले हमें इस कार्रवाई के बारे में बताइएगा। अच्छा, लाहौर थोड़ा माइक पंजाब ऊपर कर फूड लीजिए। अथॉरिटी है। हम आपको पता है कि हमारे एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स जितने भी हैं ना लाहौर के, वहाँ पे हमारी टीम्स 24 घंटे वहाँ पे रहती हैं। ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है, कोई चीज़ जहाँ पे जिस पे हमें शक होता है, या हमें जो 1223 हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर लोग हमें कॉल्स करके बताते हैं, तो हम उन चीज़ों का पीछा करते हैं, उन गाड़ियों का। जैसे ये गाड़ी सुबह पकड़ी गई है, अब ये शरकपुर से आ रही थी। ठीक है। ये जो ड्राइवर है उसका कहना है कि हमने जो जानवर था वो वहाँ शरकपुर में ज़िबा किया और वहाँ से लेके इधर आ रहे थे। ठीक है। तो ये एक मुर्दा जानवर था। जब हमारी टीम ने चेक किया तो ये मुर्दा जानवर था। अब उसको उन्होंने मुर्दा जानवर को छुरी फेरी, उसको ज़िबा किया और उसको लेके लाहौर आ गए। अब लाहौर में एंट्री के वक्त ये पकड़ा गया। अब इस पर FIR हो गई है। अब बाकायदा बाकी कार्रवाई होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि कहाँ पे लेके जाया जा रहा था। ये तबेला है जिसके पास से ये पकड़ा गया, तो वहाँ पे लेके जाना था। वहाँ पे जाके ये मुख्तलिफ ये ग्रोह हैं जो इसके पीसेस करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भेज देते हैं। ठीक है। तो इन पे हम कार्रवाई करें। आज सुबह भी हमारी टीम ने एक कार्रवाई की थी। तकरीबन 400 किलो के करीब जो गोश्त था वो हमने पकड़ा है सुबह। अच्छा, वो भी मुर्दा जानवर का? वो भी गोश्त था, उसमें मुजरे सेहत गोश्त था। अच्छा, वो हमने मुजरे पकड़ा। सेहत में क्या होता है? मुर्दा जानवर का गोश्त होता है या बीमार जानवर का गोश्त? बीमार जानवर का भी हो सकता है, मुर्दा जानवर का भी हो सकता है। वो हमारी एक्सपर्ट टीम्स हैं, हमारी ठीक है। वेटरनरी ऑफिसर्स हैं, जिनको पता चलता है, जिनके पास टेस्टिंग की फैसिलिटी है, जो वो करते हैं और उनसे उन्हें पता चल जाता है कि मुर्दा जानवर का गोश्त है, ये मुजरे सेहत गोश्त है, या इसका इस्तेमाल जो है वो इंसानों के लिए सेहतमंद नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक की इतलात तो ये है कि पता नहीं कितना गोश्त लाहौरिये जो हैं वो मुर्दा जानवर का खा चुके हैं, तो ये पॉसिबल अब भी होता है कि आप पकड़ लेते हैं? पॉसिबल होता है कि हमारी टीम्स जो है ना 24 घंटे फील्ड में है। ठीक है। हमें अभी जब से हमारी हेल्पलाइन स्टार्ट हुई है ना 1223, उससे हमें बड़ी मदद मिलना शुरू हुई। पहले लोग हमें बता नहीं पाते थे, लोग हमें कंप्लेंट्स कर नहीं सकते थे। कंप्लेंट्स करने के लिए उन्हें हमारे सरकारी नंबरों पर रब्ता करना। अभी हमने एडवर्टीजमेंट भी की है, अभी हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हुई हैं। ठीक है। लोग खुद बताते हैं कि लाइक हमारे इलाके में एक इस तरह से बंदा है, वो गोश्त बकरों का ज़िबा कर देता है, वो मुर्दा बकरे होते हैं, ये मुर्दा जानवर होते हैं, इस तरह से। तो हमारी टीम्स वहाँ पे कार्रवाई करी। हमने पिछले जब से हमारी ये कंप्लेंट नंबर लॉन्च हुआ है तब से हमने बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं। अभी लाहौर में माशाल्लाह के हमारी टीम्स इतना काम कर रही हैं कि लाहौरियों को इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुर्दा गोश्त होगा या बीमार जानवर का गोश्त होगा। लेकिन फिर भी आपको पता है आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे इतने ज़्यादा लाहौर में एंट्री पॉइंट्स हैं कि हम सब जगहों पे उस तरह से नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी हम इस बात को कह सकते हैं कि लाहौर में मुर्दा जानवर का या मुजरे से गोश्त नहीं बिक रहा। ठीक है। अच्छा नाज़ साहब, ये बताइएगा कि इसके बाद अब प्रोसेस क्या होगा? इस जानवर को क्या किया जाएगा? इसको कहाँ पे लेके इस जाया जानवर जाएगा? को हमारे जो स्लॉटर हाउस है ना, वहाँ पे हम उनको जाके देंगे, वो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उनके पास अपना एक प्रोसीजर होता है। जो शाहपुर कांजनाम वाली मंडी है ना, वहाँ पे स्लॉटर हाउस है, वो उसको एक बाकायदा प्रोसीजर से इसको ज़ाया कर देंगे इस गोश्त को, ताकि ये कभी भी किसी के इस्तेमाल में ना आ सके। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा आपके इदारे का, आपकी अथॉरिटी का मैकेनिज़्म है कि
ये एक ग्रोह की सूरत में सुना है, ऐसा लोग काम करते हैं। इसमें गाड़ी का ड्राइवर भी इन्वॉल्व होता है और ले जाने वाला और लाने वाला भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो कुछ ऐसा जो है आपकी अथॉरिटी ने कानून साजी करने की कोशिश की है कि इन ग्रोह को करार वाकई सज़ा दी जाए, क्योंकि जो मुकदमात दर्ज होते हैं वो बेलेबल ऑफेंस होती है। उसमें आज वो गिरफ़्तार हुए हैं, FIR हुई है, कल की ज़मानत हो जाएगी। अच्छा, इस बारे में ना हमारा पिछले दिनों भी मीटिंग्स हमारी चलती हैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी। ये बेसिकली जो फंक्शन है ना इसका, ये MCL भी उसमें शामिल है, उसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट भी शामिल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और पंजाब फूड अथॉरिटी भी है। ये चारों महकमे इस पे कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन असल में जो कानून है वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का है। ठीक है। तो हम उसी कानून को यूज़ करते हुए हम भी FIRs कराते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी FIRs कराती है, MCL भी कराती है। तो हम चारों महकमों को मिल के इस पर काम करना पड़ेगा ताकि ये जो एक घिनौना काम हो रहा है इस पे काबू पाया जा सके। बाबू साबू नाका जी, जहाँ पे मुर्दा जानवर का गोश्त और मुर्दा जानवर को यहाँ से लेकर जाया जा रहा था, पुलिस ने जो नाका लगाया गया है मुजाहिद स्क्वाड की जानिब से, उन्होंने नाके पे रोका उस मज़दा को, उस ट्रक को, और मुलजिम को भी गिरफ़्तार किया और जो उसमें मुर्दा जानवर था उसे भी पकड़ लिया। इंस्पेक्टर सुहेल साहब थे जी जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की। इनसे पूछते हैं कि ये तो रूटीन होगी यहाँ से जो है सुहेल साहब, मुर्दा जानवर और मुर्दा जानवर का गोश्त यहाँ से लेके जाना, तो आज की कार्रवाई जो आपने की है, जो इस शख्स को पकड़ा गया है, जो गाय थी उसमें, उसकी तफसील ज़रा बताइए। उसकी माइक ऊपर कर ले ज़रा। उसकी तफसील हुसैन भाई ये है कि हम तो रूटीन की गाड़ियाँ चेक करते हैं जिन पे शक होता है। ये दहशतगर्दी के हवाले से अफसरान वाला की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टली हदायत हैं दहशतगर्दी के हवाले से। तो ये मशकूक हो रहा था, कभी पीछे ब्रेक ला रहा था, कभी कहता था कि मेरा तेल ख़त्म हो गया। वो ट्रैफिक की रवानी में हैडल्स पैदा हो रही थी। ठीक है। तो इसको चेक किया गया तो ये पता नहीं इसके साथ कोई और भी कोई गाड़ी में पीछे होगा जो इसको फॉलोअप दे रहा था, लेकिन ये एक ही ड्राइवर था। लेकिन बाद में कहता रहा कि जी मुझे नहीं पता, मैं तो लोडर के पैसे लेने हैं, ये मैं सुंदर के इलाके से लेके आया हूँ, तो खोकर लोग हैं, उन्होंने वो नाम बताए हैं। ठीक है। ये इससे पहले भी कोई तकरीबन 1.5 माह पहले भी हमने मुर्दा गोश्तों का जानवरों का पकड़ा था शाम के वक्त। ये पुलिस को काफ़ी जल दे के गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि नाकों पर जो चेकिंग है वो बहुत स्ट्रिक्टली है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये पकड़े जाते हैं और ये इधर दूर दराज इलाकों से लेके आते हैं जो गांव वगैरह है, और इधर फिर ये पोश इलाकों में लेके चले जाते हैं, मुख्तलिफ जगह पर ये पीसेस करके उनको ये बेचते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि हर दफ़ा पहले भी आपने इस तरह के मुर्दा जानवर को लाहौर में गोश्त उसका जो है वो दाखिल होते हुए बड़ी कार्रवाई की थी और पकड़ा था। मुझे ये बताएं कि जब ये पकड़े जाते हैं, जब आप इनको नाके पे रोकते हैं, तो ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्या कहते हैं मुलजमान जो होते हैं? मुलजमानों का हुसैन भाई क्या होगा, ये इन्होंने जवाज़ पैदा किए होते हैं जी। ये जब हमने इसको छुरी फेरी थी उस वक्त ज़िंदा थे, ये मर जाने थे, हलाल चीज़ को हम हराम क्यों जाने दें। हाँ। लेकिन वो मेडिकली पता लग जाता है, हम फ़ौरन फूड अथॉरिटी को कॉल करते हैं। वो शोमी किस्मत के वो इधर ही थी। हाँ। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो दूध के सैंपल वगैरह चेक कर रही थी। ठीक है। तो ये फौरी कार्रवाई करके हमने मुतलका थाने में दे दिया। ये मुख्तलिफ जराइम करने के पीछे भी लोगों का एक मौक़िफ़ होता है, उसको सच साबित करने वाला का। बिल्कुल। वो शराब पीता है, उसने उसका एक जवाज़ पैदा किया हुआ है। जराइम करने वाले लोगों ने भी एक जवाज़ पैदा किया होता है कि जी बस मैं ये कर रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे नहीं था, मुझे नहीं पता, मैं लोडर नहीं था। हाँ। तो इस तरह की कोई ना कोई तो जवाज़ रखते हैं ना जी। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ होता है ये सारा फेक है। ठीक है। ये इनकी ये बदनीति होती है, पब्लिक को धोखा देते हैं। गोश्त काफ़ी कॉस्टली है, आबादी ज़्यादा हो गई है और ये खपत हो जाती है। ठीक है। केमिकल दूध की भी और इसकी भी। ठीक है। ये थे जी इंस्पेक्टर सुहेल साहब, जो लाहौर का अहम दाखिली और ख़ारजी रास्ता है बाबू साबू, जिसे शेराकोट नाका भी कहा जाता है। यहाँ से मुर्दा जानवरों का गोश्त जो है
वो लाहौर शहर में भी दाखिल किया जाता है और पुलिस इस पे कार्रवाई भी करती है और फूड अथॉरिटी जो है उसके नुमाइंदे भी यहाँ पे इस नाके पे मौजूद होते हैं। कई दफ़ा पकड़ा भी जाता है और मुलज़मान गिरफ़्तार भी होते हैं, FIR भी दर्ज होती हैं। लेकिन दाखिली और ख़ारजी रास्तों के अलावा अगर ये काम शहर के अंदर होता हो तो ज़ाहिर है कि उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है और हो सकता है कि लाहौर में अभी भी मुर्दा जानवर का गोश्त फ़रोख्त होता हो और वो गोश्त शहरी खाते भी हैं। डॉक्टर सलमान काज़मी है जी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि शहर लाहौर में जो मुर्दा जानवरों का गोश्त फ़रोख्त होता है वो इंसानी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है और हम फिर भी खाए जा रहे हैं और इदारे क्या कर रहे हैं, ये सारी तफसील कुछ इनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब हमने देखा कि जो इदारे हैं और पुलिस है, मुर्दा गोश्त लाहौर में दाखिल होता है उसको पकड़ा भी जाता है, रोकने की भी कोशिश की जाती है जानवरों का जो गोश्त होता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी इतलात के मुताबिक और मुतलका इदारे भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मुर्दा जानवरों का गोश्त हम लाहौर में खा रहे हैं। कितना नुकसानदेह है? देखिए जी, बहुत नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे एक जानवर की डेथ हो जाती है तो उसके जितने जिस्म के जो प्रोटीन्स वगैरह जो गोश्त में होते हैं वो जहर बनना शुरू हो जाता है उसके अंदर, और वो टॉक्सिन्स उसके अंदर जो है वो रिलीज़ होने लग जाते हैं मुर्दा होते ही, जानवर हो या इंसान हो। ठीक है। तो वो ऐसा टॉक्सिन्स हैं जिससे एक इंसान अगर खा ले तो एक जहर की तरह ही है वो, और बेशक उसको गोश्त को ये पकाते भी हैं आग पे और तेल छेल डालते हैं, हर चीज़ करते हैं, मगर उसके अंदर जो असरात होते हैं, अगर वो आप देखते हैं कई दफ़ा खाना खा के एकदम पेट ख़राब हो जाता है, बड़े पतले खाने आते हैं, वो जरासीम होते हैं उसके अंदर ऐसे कि एक हैज़ा की शक्ल इख्तियार कर सकता है जिसमें पतले पखाने, उल्टियाँ और पानी जिस्म से ज़्यादा अपना ज़ाया हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। और दूसरा ये कि इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलर आपने देखा होगा ये कबाब और इस तरह की चीज़ें जिनमें मिन्स्ड मीट यानी कि कीमा बना हुआ गोश्त डालते हैं, जिसमें अंतड़ियाँ भी, मुर्दा जानवरों का गोश्त भी, सस्ते 30-30 रुपए के कबाब बड़े बड़े बिक रहे हैं, चिकन पीस आप देखें मुख्तलिफ़ जगहों पे, बहुत सारी मुर्गियाँ मर जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी सारी जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उनको भी हलाल करके सस्ते गोश्त के नाम पे उन्हें बेच देते हैं और आगे वो मुख्तलिफ़ जगहों पे तिक्के पीसों में, इन चीज़ों में ये इस्तेमाल हो रही होती हैं। शहरियों के लिए ज़रा बड़ा ज़रूरी है कि जब गोश्त खा रहे हैं कम से कम उसका सोर्स ज़रूर देखें कि होटल कैसा है, इसने कहाँ से लेता है गोश्त। हमारे भी किंग एडवर्ड के मैस हैं 6-7, हमें इवन डॉक्टरों को भी तो हम खाते पीते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम इनका एक फ़िक्स्ड वेंडर है जो ज़िंदा मुर्गियाँ हैं, ख़ुद एक बंदा साथ जाता है, उसने नज़र रखी हुई है कुक पे कि ये ज़िबा कहाँ से कराता है, लेके कहाँ से आता है। इसलिए जानवर पे नज़र ज़रूर होनी चाहिए। जो ख़ास तौर पे जिस तरह जो छोटी दुकानें हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, ये ढाबे हैं जो सड़कों पे शाम को आप देखते हैं मुख्तलिफ़ टिक्के बना, ये बना, वो बना, ये लोग ऐसे गोश्त इस्तेमाल अक्सर करते हैं। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनके यूजुअली जो बहुत बड़ी चेन्स हैं जैसे जो इंटरनेशनल चेन्स हैं उनकी तो मजबूरी है कि वो म्यार को मेंटेन रखती हैं। साथ पंजाब फूड अथॉरिटी मुसलसल छापे मारती है। हमेशा जो ओवरलुक होता है वो छोटा रेस्टोरेंट है, इसलिए जब आप छोटे रेस्टोरेंट से खाना खा रहे हैं तो किसी ऐसे से खाएं जो आपका वाकफ़ है, जिसका आपको पता है कि ईमानदार है, गंदा सामान और गंदा गोश्त ये या मरा हुआ गोश्त जानवरों का नहीं इस्तेमाल कर रहा। जो नुकसानात के हवाले से कुछ लोग हैं जो रेगुलर इन्हीं से खाते हैं। स्लोली आप देखें कैंसर के कितने ज़्यादा मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। रोज़ाना हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि यार ये आदमी था, ये अच्छा मतलब कई रेगुलर फॉलोअप पे होते हैं पेशेंट्स, तो आपको पता लगता है यार इसको अंतड़ियों का कैंसर हो गया है, इसको मसाने का कैंसर हो गया है। ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स हैं जो कि तेज़ी से जिस वजह से फैल रहे हैं। ये आप बता रहे थे कि जो मुर्दा जानवर का गोश्त होता है उससे किस तरह की बीमारियां लगती हैं, तो ऐसा भी होता है कि बाज़ जानवर बीमार होते हैं, बिल्कुल करीबुल मर्द होते हैं, जी बिल्कुल, तो उनका क्या नुकसान होता है और उनके खाने से इंसानी सेहत जो है वो कितनी देखिए जी, कई दफ़ा जो जानवर हैं इनमें ऐसी बीमारियां होती हैं, इनके अंदर कई कीड़े, एक हाइड्रेटेड सिस्ट होती है, कीड़ा होता है, वो नंगे पाँव अगर आप इंसान भी फिरता रहे घास पे इधर उधर तो वहाँ से वो तलवों से एंटर हो सकता है और जिगर में जाके सिस्टें बन जाती हैं। अच्छा। इसी तरह कोई कुत्ते और बिल्ली के जो एक्सक्रीटा होता है, जैसे वो पेशाब पखाना करते हैं, तो वो अगर आपके पैरों को लग जाता है उसमें से भी कई लार्वा और इस तरह के कीड़े होते हैं जो कि इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसके अंदर तक आ सकते हैं। इसी तरह जो बीमार और लागर जानवर होता है उसके अंदर पट्ठों में उसके जो होते हैं उसके सिस्टें बनी होती हैं, जो कि अगर आप अंडर कुक्ड खा लें यानी कि प्रॉपर पका हुआ ना हो
तो आप वो एक्वायर कर सकते हैं। जब आप वो सिस्ट एक्वायर कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म में भी वो सिस्ट बन जाती है, जिगर में, फेफड़ों में, उससे उसे खून आ सकता है बलगम के साथ, जिगर का साइज़ बड़ा हो सकता है, दिमाग में अगर सिस्ट बन जाए तो फालिज का अटैक हो सकता है, एक माजूरी हो सकती है। ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर ये साहब, जो अलामात आपने बताई हैं, अगर किसी ने मुर्दा जानवर का गोश्त खाया है या किसी लागर जानवर का गोश्त खाया है तो इनमें से कोई अलामात नहीं होती हैं, तो ये हम समझ सकते हैं, मैं और आप और हमारे देखने वाले, कि उसने कभी मुर्दा गोश्त जो है जानवर का नहीं देखिए जी, खाया? ये सोर्स एक्चुअली जो बीमारियां हैं ना, ये टाइम लेती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अक्यूट हैं। अक्यूट का मतलब है जैसे आप एक गोश्त खाते हैं, उसमें अंडर कुक्ड है, प्रीफॉर्म टॉक्सिन था, वो खाया आपने, साथ ही उल्टियाँ, पखाने, धड़ाधड़ आप भागे आए अस्पताल को, तो पता लग जाता है कि यार यही खाया था, इस वजह से ये सब कुछ हो गया। हो सकता है उसमें मुर्दा जानवर का गोश्त भी हो सकता ठीक है, है। और या कच्चा गोश्त हो सकता है जो कि पका हुआ ना हो। कई दफ़ा जिंदा जानवर का गोश्त भी अगर सही पका हुआ नहीं है, उसको प्रॉपर कुकिंग नहीं की गई, तो उससे भी ये सब कुछ हो सकता है। उसके अलावा जो अपना बीमारियाँ हैं, ये जैसे सिस्ट बन जाना, दिमाग में सिस्ट बन जाना, फेफड़ों से खून आना, इसमें टाइम लगता है। ये एक ओवर हो सकता है 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद अलामात आने लग जाएं कि दिमाग का कोई मसला हुआ है, झटके लगे हैं, बंदा बेहोश हो गया है। तो वो फिर जब डॉक्टर टेस्ट कराते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अच्छा यार ये कोई इसने कुछ खाया था उस वक्त, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मगर ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं होते। अलमिया ये है कि यहाँ पे ना कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ पूरे पंजाब के लिए कि जिसमें अगर कोई बंदा को पीला यरकान होता है वो रिपोर्ट करता है। जैसे आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं पीले यरकान के, मगर वो कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहे। डेंगू के केसेस आते हैं, देखें 1-2 डेथ्स होती, शोर मच जाता है। अब कुछ बीमारियां ऐसी जैसे गुर्दे फेल होने वाले रोज़ाना 10-15 मरीज़ आ रहे हैं, अब किसी को नहीं पता कि क्यों फेल हो गया। इसने कोई कुश्ते खाए हैं, कोई ऐसा गोश्त खाता रहा है, क्या करता रहा ऐसा कि जिस वजह से ये रिपोर्ट हो गया। मतलब वो हुकूमत को चाहिए, सरकार को, कि एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दे, जिस बंदे को जो बीमारी है, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो उस पर अपना नाम वगैरह और अपनी बीमारी एंटर कर दे, ताकि सरकार को पता हो कि इतने लोग हैं सूबे में जिनको शुगर है, इतने लोग ऐसे हैं जिनके गुर्दे फेल हुए हैं, इतने लोग ऐसे हैं जिनको ये बीमारी चल रही है। जैसे सिस्ट हैं, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक पेशेंट देखता हूँ, मुझे फील होता है यार ये रिपोर्ट होना चाहिए, मैं उस ऐप पे उसको एंटर कर दूँ, सरकार को पता लग जाए कि यार ये बंदा था, इसको HIV है, ये बंदा, फिर वो उनको फॉलो किया जा सकता है। उनके हवाले से एक एनुअल बजट बन सकता है सालाना कि यार इतने हज़ार मरीज़ इस बीमारी के आ रहे हैं, तो इसको इतने पैसे हमने एलोकेट करने हैं। यहाँ पे अलमिया ये, इस पर कोई पैसे नहीं लगने मोबाइल एप्लीकेशन बनाने पर। अगर आप बनाएं तो कोई भी डेवलपर बना देगा, सरकार उसको लॉन्च करे, उसको इफेक्टिव बनाए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको शनाख्ती कार्ड से लिंक कर दें, नादरा के साथ बेशक बात कर लें, नादरा के साथ उसके एक खाने दे दें उसमें, ताकि लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो हमारे स्लाटर हाउस हैं, जहाँ पे हमें तो डॉक्टर भी उन्होंने डिप्यूट किए हुए हैं वहाँ पे, डॉक्टर भी उन्होंने किया, बिल्कुल वेटनरी डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर साहब क्या ऐसा वो टेस्ट करते हैं, या जानवर जो है वो देखने में, जैसे कोई आम आदमी भी देखने में बिल्कुल सेहतमंद लगता है और जानवरों का भी इसी तरह से होता है, क्या वो तसल्ली बख्श टेस्ट होते हैं? उनकी जो देखभाल की जाती है या देखभाल करने के बाद उनको ज़िबा किया जाता है, वो सिस्टम जो है वो ठीक है? देखिए जी, जो सरकार का सिस्टम है, जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जिसको लुक आफ्टर करता है, डेफिनेटली वो बेहतर चल रहा है। और अगर बिल्कुल ना चल रहा हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ मरीज़ और इस तरह की शोर मचा हो हर वक्त। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शहर में जिन्होंने दुकानें बनाई, जो कि किसी लाइफ स्टॉक वाले को नहीं दिखाते, किसी को नहीं दिखाते, खुद से चला रहे हैं, कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब किसी को नहीं पता कि रात को कितने फूड वेंडर्स हैं जो रेडियाँ लगा के सामने आएंगे और अपने गोश्त और टिक्के और ये और वो बेचेंगे, और चिकन पीस लगाएंगे और बेचेंगे टांगे और निकलते होंगे। अब उससे कोई मरे हुए थे, नहीं मरे हुए थे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। इस सारे को चेक एंड बैलेंस करने के लिए अफसर मौजूद हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट मौजूद है, सरकार के पंजाब फूड अथॉरिटी मौजूद है, मगर जितने भी लोग आप देखें ना, जो छापे मारी आजकल फूड अथॉरिटी भी इनफेक्टिव सी हो गई है। जुर्माने का चलान देते हैं, जुर्माना होता है, फिर खोल देते हैं। वो जो था ना पहले सील करने वाला सिलसिला, उससे लोगों को फिर भी डर एंड खौफ था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट डरते थे कि यार सील हो गए, टीवी पे चला, उन्होंने रिटेन किए अखबार उस वक्त, मैं अपना ऑर्डर्स ले लिया, जुडिशल ऑर्डर्स के, जी हमारी तस्वीर ना चलाई जाए रेस्टोरेंट की, हमें बदनामी होती है, ये वो। ऑल्दो मेरा तो ये ख्याल है कि इनकी डेफिनेटली जो बंदा गलत काम कर रहा है, अगर कहीं से मुर्दा गोश्त मिलता है, मुर्दा मुर्गियाँ बरामद हो जाती हैं, क्योंकि रोज़ाना जो टोलंटन मार्केट में मरी हुई साइड पे पड़ी होती हैं, वो कहीं ना कहीं तो जाती हैं, कोई ना कोई तो लेके जाता है। वो कूड़ा, ये कूड़े में तो मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई जा रही हो, कोई ना कोई तो उन्हें ज़िबा करता है और कहीं ना कहीं सप्लाई हो जाती हैं। जो पकड़े जाते हैं उनको भरपूर तरीके से सारे चैनलों पर चलाया जाए, ये हैं असल खबरें जो कि चलनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे और उनके बोर्ड दिखाए जाएँ, ताकि लोग उन दुकानों पर ना जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का किरदार, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का किरदार, जितने ज़िले की इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर्स, इन सब का रोल है इस सारे में। और जब तक ये लोग इसको एक इबादत समझ के नहीं करेंगे कि यार हमने इनको पकड़ना है लोगों को, जब तक ये कभी नहीं रुक सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तासुर ये है, ख़ासकर गांव देहातों में और शहर में भी होगा,
कि जानवर जो है वो बिल्कुल मरने वाला है, बीमार हो गया है, तो उसको फौरी तौर पे ज़िबा कर लिया जाए। क्या उसकी बीमारी की वजह, चाहे उसके वो मरने की वजह बीमारी ही उसकी है, तो उसको जो ज़िबा करके आम घरों में भी लोग, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो गाय हो, उसका गोश्त खा लेते हैं, वो भी उतना ही नुकसानदेह है जितना किसी मुर्दा जानवर का गोश्त खाना है। देखिए जी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जानवरों में जो कि ट्रांसमिट हो जाती हैं इंसानों में। उन बीमारियों का शिकार जानवरों को डेफिनेटली खाने का नुकसान है और उससे आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि आप बीमारियां एक्वायर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो सिस्ट हैं, जैसे ये मैंने कहा हाइड्रेटेड सिस्ट है, कई और किस्म के लार्वा हैं जो कि जानवरों के अंदर खून में शामिल हो जाते हैं, उनके पट्ठों में आ जाते हैं। उसके बाद वो अगर इंसान खा ले तो इंसान में ट्रांसमिट हो सकते हैं। कई ऐसे हैं जो जानवरों के पखाने के रास्ते इंसानों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, एक चेन है, उनकी साइकिल है। तो वो वाले जानवरों से हमें डेफिनेटली एक, वो आम आदमी को तो नहीं पता, ना मुझे पता होगा, ना आपको पता होगा कि ये जो जानवर हम खा रहे हैं, जिसका गोश्त हम 1 किलो या 2 किलो, हम तो 1-2 किलो, हम पूरा बकरा तो खरीद के नहीं लेके आएंगे, हमें क्या पता कि गोश्त कैसा था। तो ये इस पे फिर हमारे जैसे लोग, जैसे आप सोचते हैं, तो हम रिलाई करते हैं कि यार बड़ी बड़ी चेन्स हैं जैसे, या हमारा जो इलाके का महल्ले का कसाब है, उसका हमें पता है कि यार उसकी भैंस ठीक थी, हमारे सामने वो 4 भैंसें खड़ी थी, रोज़ाना एक ज़िबा करता है, सही सेहतमंद लग रही हैं। ऐसे तरीके से लोग मेरा ख्याल है असेस कर सकते हैं कि यार ये गोश्त ठीक है। कुछ लोगों ने, तो मैंने देखा बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, उन्होंने घरों में दुम्बे रख लिए हैं 10-10, और वो उन्हीं को एक एक करके ज़िबा करके फ्रीज़रों में रख के खाते रहते हैं और ख़ुद पालते हैं उन्हें और ख़ुद ही उनको खाते हैं। मगर ये हमारे जैसा आदमी तो नहीं है, आप जैसा आदमी तो नहीं कर सकता कि वो 10 दुम्बे पाल ले और फिर उनका गोश्त खाना शुरू कर दे। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, शहर लाहौर के वासी कई दफ़ा मुर्दा जानवर का गोश्त खा चुके होंगे और मुस्तकबिल हमने भी पता नहीं कितनी दफ़ा खाया हो, कोई पता नहीं हम। हाँ, बिल्कुल। मैसेज कोई देना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं? मैं जी, मेरा तो यही मैसेज है, मैं बल्कि आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि इस इतने वाइटल इशू को आपने उठाया है और इस पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे प्रोग्राम्स होंगे, जैसे ये इशू है, ताई डॉक्टर्स हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जिनको कोई टच नहीं करता और इन पे कोई बात नहीं होती, और ये लोगों के इश्यूज़ हैं, आवाम के इश्यूज़ हैं। मेरी ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप गोश्त ख़रीद रहे हैं तो एतबार वाले आदमी से ख़रीदें। और मेरी पुलिस से दरख्वास्त है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कि फ़ूड के बिज़नेस पे यूजुअली जब आप थाने में दरख्वास्त देते हैं ना कि ये कैंटीन वाला है, ये खाना ठीक नहीं दे रहा, ये इसके पास गोश्त ठीक नहीं होता, तो वो पुलिस हंसती है उस पर दरख्वास्त पे, यार ऐसा साडा काम में गया, कोई काम में डॉक्टर साहब रहन दो, वो छड्डो। ये बड़ा वाइटल इशू है। फूड की जो बंदा जो खाने पीने में 2 नंबरी कर रहा है, उसको तो फांसी पे लटका देना चाहिए था, क्योंकि तभी इतनी ज़्यादा बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं आपके, कि अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं। और अगर हम इसको नहीं रोकेंगे, तमाम सरकार के इदारे, मेरी ये कमिश्नर लाहौर से दरख्वास्त है और तमाम डिवीज़नल कमिश्नर से, कि आप अपने अपने ज़िलों में एक मीटिंग रखा करें हर 15 दिन बाद, और उसमें फॉलो अप लें कि कितने पर्चे हुए, उसमें प्रोसिक्यूशन के लोगों को बुलाएं, और जो प्रोसिक्यूटर्स पेश हो रहे हैं उसमें उन सज़ाओं, मतलब कि बंदे को 6 महीने जेल की सज़ा है, उसे 6 महीने जेल में रखवाएं, ताकि उसको सबक मिले आइंदा के लिए। अगर तीसरे दिन उसकी ज़मानत हो जाएगी और हर बंदा उस पर्चे को देख के हंसेगा कि यार ये क्या पर्चा दे दिया, तो फिर तो डिस्करेजमेंट है उन लोगों के लिए जो पॉइंट आउट करते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, और ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सज़ा और जज़ा का हम निज़ाम नहीं लेके आएंगे। कानून में तरमीम की भी ज़रूरत है, क्योंकि यकीनन जब इस तरह का करने वाला कोई पकड़ा जाता है, तो मेरे इल्म में तो यही बात है कि तो 1 या 2 रोज़ बाद उसकी ज़मानत ये हो सर जाती है। ऐसे ही है जैसे जाली डॉक्टर्स हैं, इनके पीछे कानून ये था कि आप इनको 6 महीने जेल की सज़ा हो सकती है और 3 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। सर 6 महीने जेल एक सज़ा है। ज़मानत हो जाना तो इसलिए हो जाती है कि नाअहली है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी, प्रोसिक्यूटर है, वो वहाँ पेश हो रहा था, वो चाय पी रहा था, वो पेश ही नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट ने सुना, उसने कहा भाई कहाँ है सरकारी वकीलों ने कहा जी रिकॉर्ड ही नहीं आया। और कहते यार क्या तुम बंदा 15 मिनट से हथकड़ी लगा के खड़ा है, तुम इसको छोड़ दो, और छूट जाता है। क्या ऑफेंस है? ऑफेंस देखता है और कहता है यार बेलेबल है, चलो छोड़ दो। ये जजेस से भी, मेरी सिविल जो मजिस्ट्रेट्स हैं जो ज़मानतें लेते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फूड के मामलात में, ताई डॉक्टरों के मामलात में इनको ज़मानतें ना दें, इनको जेलों में भेजें ताकि इनको सबक मिले। मैं कहता हूँ 15 दिन भी जेल में रहे, 6 महीने जेल में रहे, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। मतलब उसको मोहल्ले में, पूरे इलाके में तो पता लग जाएगा कम से कम कि जी फड़े गए सन 6 महीने अंदर रह गया इन्हें। जो बदनामी है ना, जिस तरह मैं अक्सर हम अताई डॉक्टरों पे भी पहले आपके चैनल के साथ प्रोग्राम्स करते रहे हैं, तो वो अताई डॉक्टर ये कहते हैं डॉक्टर साहब टीवी ते ना चले, क्योंकि वो सारा मोहल्ला कहेगा यार भैन तुसी ते फड़े गए सी होते 6 महीने अंदर रह के आए हो। तो ये इसी तरह फूड के रेस्टोरेंट्स भी ना, इनकी जब चलता है ना कि फलां होटल पकड़ा गया, तो वो कॉमन आदमी देखता है कि यार ये तो बंदा ठीक नहीं, इससे खाना नहीं खाना चाहिए, तो उसकी क्लाइंटेज 50 से 60% फ़ौरन गिर जाती है। बिल्कुल। तो ये एक पब्लिक जो आपकी एक चैनल्स के ज़रिए हो सकता है, अगर ये आप लोग इस तरह का सिलसिला जारी रखें, तो मेरा ख्याल है
है कि सज़ाएँ भी होंगी लोगों को, और फिर फॉलो अप होता रहे, कमिश्नर्स अपने अपने ज़िलों में मीटिंग्स लें, प्रोसिक्यूशन उसमें शामिल हो, सज़ाओं में देखा जाए, फिर उन सज़ाओं पे जो जिस तरह आप देखें ना किसी को सज़ाएँ मौत होती है तो कितनी खबरें चढ़ती हैं सारे चैनलों पे, तो जिस बंदे ने यहाँ मुर्दा गोश्त बेचा है उसकी भी खबर चलनी चाहिए कि यार इसने 6 महीने की इसको जेल की सज़ा होगी, तो कितने लोग डरेंगे बाकी के कि यार 6 महीने जेल चला गया। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि शहर लाहौर के रहने वाले मुर्दा जानवरों का गोश्त अभी भी खा रहे हैं। मुतलका महकमे जो हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पुलिस भी मुतहरिक है, लेकिन इसके बावजूद और इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद अभी भी तवक्को ये की जाती है कि मुज़र सेहत गोश्त और ख़ासकर मुर्दा जानवरों और बीमार जानवरों का गोश्त लाहौर शहर में फ़रोख्त होता है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।